I think we are good to go. I think we are good to go. I think we should start. Thank you so much for bringing me live on this platform. Namaskar, Vishal ji. Thank you, Sunil Raina ji. विस्थापित कब तक? I thank the group, the management for providing me an opportunity to speak on issues that affect each and every individual who is a non-Muslim in Jammu and Kashmir. And in fact, in the longer run, affects each and every Indian who wants to save his country, who wants that his country, the country's civilization should thrive and flourish. I think I have been given two topics to address on. The first is डेमोग्राफिक इन्वेजन, जनसांख्यिकी परिवर्तन, धर्म के आधार पे, धर्म को आधार बना के जम्मू की जनसंख्या में परिवर्तन लाना, इंट्रोड्यूस करना. एंड द सेकेंड वन इज डीलिमिटेशन प्रोसेस, परिसीमन, अ प्रोसेस जिसके आधार पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चरित्र तय होगा, अ प्रोसेस जिसके आधार पे कौन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनता है वो तय होगा, अ प्रोसेस जिसके आधार पे सत्ता जम्मू कश्मीर में जम्मू को सौंपी जाएगी या कश्मीर को सौंपी जाएगी वो तय होता है. सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट फर्स्ट विद what is now also popularly known in the national media as land jihad. डेमोग्राफिक चेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो टोटलिटेरियन इस्लामो फासिस्ट ताकतें हैं उन्होंने लैंड जिहाद का सहारा लिया है. ऑब्वियसली और टूल्स भी हैं विच इन द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन आई विल डिस्कस इन डिटेल. लेकिन लैंड पे कब्जा करना, फिजिकली इन्वेड करना जम्मू प्रोविंस को, एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही साफ सुथरा दिखने वाला which is visible even to the naked eye एक phenomenon है. And I think it is very important for us to know this. But before I start actually dealing with the tools using which demographic invasion of Jammu is being undertaken, let us first understand this simple fact. Let us understand and let us internalize it, that demographic change in Jammu province of Jammu and Kashmir is a state-sponsored phenomenon. Please remember, I am saying that demographic change in Jammu and Kashmir, and especially in the Jammu province of Jammu and Kashmir, is a state-sponsored phenomenon. It is an organized attempt of radical Islamists who are often disguised as mainstream political parties of Kashmir to complete the process of Islamization of J&K. So once this Islamization of J&K happens, then this entire state can be used as a launch pad for what is called as Ghazwa-e-Hind, the raid of India. In fact, I was reading a book written by a veteran general of the Pakistani army, and in that book he discusses as to how Ghazwa-e-Hind will happen. So he discusses it from military point of view. He says that for Ghazwa-e-Hind to happen, fall of northern India is very important, and within that, fall of Jammu is critical. Only then we can use the state, this area, as a launch pad for executing Ghazwa-e-Hind, which has been divinely ordained, dictated, and there is a hadith for that also. And we see that Pakistan's army being an army of the Islamic Republic, army of the Prophet,
has to execute it, and they're working on that. In fact, they have so many theories in this regard. They have so many military strategies in this regard, and we have to have a counter response, but we normally live in denial mode. So for Ghazwa-e-Hind to happen, Jammu's fall is critical. So in this context, demographic invasion of Jammu is a tool by which you will Islamize Jammu and hence entire Jammu and Kashmir for your long-term objectives. Demographic invasion of Jammu is a genocidal process. You see, after the genocide of Hindus and Sikhs in Kashmir, and I'm talking to Kashmiri Pandits exclusively and to the larger audience, of course, but then directly to the Kashmiri Pandits, and they are aware of whatever has happened with them in 89 and 90s. Genocide, though unfortunately not recognized by the government of India as genocide. But after this genocide of Hindus and Sikhs in Kashmir, the next target is Jammu province. Kashmiri Hindus were thrown out of Kashmir through a planned genocide, which could become possible because of the Hindu minority character of the place. The population was also scattered. Kashmiri Hindus were very less in number. The valley was Islamized within years. Now, as far as Jammu is concerned, you have this huge mass of non-Muslim community in Jammu. You have majority Hindus in Jammu. So the jihadists chose to Islamize Jammu through this process of changing Jammu's demography. Now, when I say that Jammu's demographic change is a state-sponsored process, I think I should also discuss tools deployed by the state apparatus in bringing this planned, organized demographic change. So, of course, I will have to talk about legislative tools, executive tools, acts of omission and commission on part of the government. So, I'll deal with them in detail. But let me first outline the tools. क्या-क्या हथियार, क्या-क्या तरीके यहाँ की सरकार इस्तेमाल करती आई है और इस्तेमाल कर रही है डेमोक्रेटिक स्पेसेस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके. उसका मुझे लगता है कि यहाँ पे विवरण देना बहुत आवश्यक है टू इस्टेब्लिश कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक इन्वेजन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है. I think I should discuss directly the tool deployed at the legislative level. I mean, using our legislative assembly, they came out with a law called J&K State Lands Vesting of Ownership to the Occupants Act, which was popularly known as the Roshni Act. This is a law which was used to allot state and public lands to Muslims in Jammu. मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन let us first understand 8-9 tools deployed by the state to bring in demographic change in Jammu. The first one at the legislative level, कानून बना के एक धर्म विशेष के लोगों को ज़मीनें देने की प्रक्रिया रोशनी एक्ट से प्रारंभ की गई. रोशनी एक्ट, जिसका लीगल टर्म्स में नाम J&K वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट, वेस्टिंग ऑफ स्टेट लैंड्स टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, रोशनी एक्ट जिसे कहा गया, उसके तहत जम्मू संभाग में ओवरवेलमिंगली मुसलमानों को सरकारी ज़मीन देने का लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था. सेकंड, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो इन्होंने जिहाद किया, रोशनी एक्ट इज लेजिस्लेटिव जिहाद, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो इन्होंने जिहाद किया, द सेकंड एक्ट इज द चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्तीज क्लैंडस्टीनली इशूड टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड 14 फरवरी ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत महबूबा मुफ्ती हैड गिवन लीगल इम्यूनिटी टू मुस्लिम्स फॉर कैप्चरिंग लैंड्स इन जम्मू. So land encroachment is an offense, but Mehbooba Mufti came out and the chief minister of the state came out with an executive 4-page order giving immunity to Muslims from the application of an act which deals with land encroachments. So they were given legal immunity to occupy forest lands in Jammu province. They were given legal immunity to occupy state lands in Jammu province. Lands adjoining river banks, in certain cases the river banks itself, and all kinds of land. The third tool which
through acts of omission and commission the state apparatus has deployed is that they allow forest lands to be captured in Jammu province by certain classes of Muslims, and they do not do anything about it. They just allow, and you see, you have huge ghettoization of Muslims on forest lands, thousands of concrete jungles having mosques, madrasas, residential houses, commercial complexes, 100% Muslims, visible through the naked eye, and the type of land, the land recorded in revenue records is the forest land. It baffles everybody who comes from outside and sees that, well, this place is a forest. We can see that it is surrounded by a forest. 15 years, 20 years, back, if you see the Google images, that was a lush green forest. Even as on date in revenue records, it is recorded as a forest. But how come these concrete jungles come up? And how is it possible that all these concrete jungles, concrete homes, mosques, commercial spaces belong to only one category of people? So the state in Jammu and Kashmir allows Muslims to capture forest lands in Jammu province in all districts and create Muslim ghettos. Then the fourth thing that is used to change the demography of Jammu is the wholesale capture of riverbeds. आप जम्मू से डोडा किश्तवाड़ तक चले जाएं, जम्मू से राजौरी पुंछ तक चले जाएं, बानीहाल तक चले जाएं, लखनपुर से बानीहाल तक चले जाएं, रास्ते में जितने भी रिवर्स पड़ते हैं, चाहे रावी दरिया हो, बसंतर दरिया हो, उज्ज दरिया हो, छोटे छोटे नालाज हों, तवी हो, चिनाब हो, और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज हों, इनके जो रिवर बेड्स हैं और जो रिवर बैंक्स हैं, they are captured by only one community, and that is Muslims. It is a state land. It is a land which is ecologically very, very sensitive. You can't just allow, you see, river beds to be captured. But then Tavi river ka we had data, visible evidence. You go anywhere. I am basically from Kathua, so when I travel from Jammu to Kathua and then towards the border, जब भी घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और जो सामने मुझे अपनी नज़रों से दिखता है, these are all Muslim settlements on river beds जो कवर है. लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तवी लैंड एनक्रोचमेंट के रिलेशन में कुछ डेटा मंगवाया गया. एक हाई पावर्ड कमेटी ने वो डेटा इकट्ठा किया था, जिसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी थे. और वो जो डेटा है मेरे ऑफिस में मेरे पास इस समय पड़ा हुआ है. आई हैव द डेटा. उसमें जम्मू सिटी में ही रिवर तवी का जो एक्सटेंट है केवल जम्मू सिटी में, उसमें रिवर तवी का रिवर बैंक और एडजॉइनिंग जो स्टेट लैंड है, जो एनक्रोचमेंट है, उसको लेके जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें 99% एनक्रोचर्स के नाम जो उसमें इंक्लूडेड हैं वो मुस्लिम्स हैं. सो जहाँ पे आपके पास डेटा नहीं है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लोगों से बात करके आप ये जान सकते हैं कि केवल मुस्लिम्स ने रिवर बेड्स पे कब्जा किया है. और तभी के केस में आपके पास हाई कोर्ट में रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिसके आधार पे यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि 99% से भी अधिक, एक या दो नॉन मुस्लिम्स के उसमें नाम होंगे. वो सारा तवी रिवर को मुसलमानों ने घेरा हुआ है. सो कैप्चरिंग रिवर बेड्स, बैंक्स एंड एडजॉइनिंग स्टेट लैंड्स all across Jammu province with state support is another tool. Then next very important tool जो state support की मदद से किया जाता है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल इस्लामी ताकतें भी शामिल हैं, which is funded colonization of Jammu. Muslim land purchases in Jammu province are subsidized by these powers outside. मैं डिटेल में बात करूंगा इस पॉइंट पे कि किस तरीके से सब्सिडाइज किया जाता है, किस तरीके से कुछ लोगों को सब्सिडी दी जाती है अगर वो जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्रों में ज़मीन खरीदें, मुस्लिम्स.
व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ सब्सिडी दे गेट, 1 करोड़ का अगर प्लॉट वो खरीदें तो कितने पैसे उनको वापस मिलते हैं, कौन वो ताकतें हैं जो ये पैसा भेजती हैं, कौन से वो चैनल्स हैं जिनके ज़रिए ये पैसा आता है, और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट जो इस पैसे को डिलीवर करते हैं टू द परचेजर, टू द लास्ट मैन. Then a very interesting phenomena of changing the demography of Jammu by using the government apparatus or by using the state apparatus, हमने इसे नाम दिया है induced migration का, where through government schemes you are induced to come and settle in Jammu, and you means only Muslims. देखिए, जो गरीब मुसलमान हैं कश्मीर में, you offer him a status of a migrant on the ground of the fact that that particular Muslim family is a religiously persecuted family. वो आतंकवाद से ग्रस्त फैमिली है, उसकी रिलीजियस परसिक्यूशन वहाँ पे होती है एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में. देखिए, दिस इज हाउ ब्लेटेंटली एंड ब्रेजनली दे डू दिस. एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में धर्म के आधार पे मुसलमान की प्रताड़ना, ये किसी को समझ नहीं आता, लेकिन सरकार के कागजों में आपको ऐसे 200 से अधिक लोगों की लिस्ट दिखेगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमान लोग कश्मीर में जो रह रहे थे, गरीब लोग थे, ये धार्मिक प्रताड़ना के कारण जम्मू में आके सेटल हुए हैं, इसलिए इन्हें कश्मीरी हिंदुओं को मिलने वाली सब सुख सुविधाएं दी जाएंगी, इन्हें रहने के लिए घर दिया जाएगा, खाने के लिए सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कहीं कहीं रिजर्वेशन दी जाएगी, इनके लिए सीट्स कोटास अवेलेबल इनको करवाए जाएंगे. यानी कश्मीरी हिंदुओं ने जो जेनोसाइड फेस किया और उसके बाद जो उन्हें लीगल स्टेटस जम्मू में या और शहरों में आके मिला, वो स्टेटस ये कहते हैं गरीब मुसलमानों को कश्मीर में कि हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा और जम्मू में जाके आपको सेटल होना पड़ेगा. सो दैट्स कॉल्ड एज इंड्यूस्ड माइग्रेशन. अगला जो मेन तरीका है, एक नया फिनोमिना जो आया है, दैट इज ब्रिंगिंग इन इलीगल इमिग्रेंट्स टू जम्मू, अगर वो मुस्लिम्स हैं तो. सो आई एम टॉकिंग अबाउट रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज. एवरीबडी लिविंग इन जम्मू, लिविंग आउटसाइड जम्मू नोज कि रोहिंग्याज की जो सेटलमेंट है जम्मू में, जम्मू सिटी में, कठुआ में, सांबा में, उधमपुर में, जम्मू संभाग के, जम्मू प्रोविंस के सभी हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट इज अ फिनोमिना विच इज हैपनिंग इन अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ये लोग वो लोग हैं जो म्यांमार में वही जंग लड़ रहे थे जो अलगाववादी जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं. सो दे आर नेचुरल अलाइज, वन. सेकेंड, मुस्लिम्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एनीबडी to be allowed to settle in J&K and have a state subject certificate. 370 खत्म होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं. If he is a Muslim, तो उसे 370 भी उसके आड़े नहीं आएगा. So that is how हजारों रोहिंग्याज और बांग्लादेशी फैमिलीज इन्होंने जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्रों में स्थापित की, सेटल की. अनदर वे ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफी. सपोज 55,000 वो आज की अगर डेट में, आज की समय में 55,000 है, तो आने वाले 10 सालों में वो कितनी होंगी और इस डेमोग्राफिक चेंज के प्रोसेस में कितना ऐड करेंगे. आई थिंक आई नीड नॉट इवन गेस कि जो इनके ब्रीडिंग पैटर्न्स या रिप्रोडक्शन पैटर्न्स रहते हैं. उसके अलावा a very important tool within the government structure of bringing in demographic changes also by fudging revenue record. किस तरीके से they would transfer पटवारीज in violation of सर्विस रूल्स आउटसाइड देयर डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स. एक धर्म विशेष के एक ट्रेंड पटवारीज वो अपने डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स उन्हें बाहर ट्रांसफ़र करेंगे जो सर्विस रूल्स के हिसाब से उनकी डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. एंड देन दीज पटवारीज विल फज रेवेन्यू रिकॉर्ड इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स इन एरियाज विच आर ऑब्वियसली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज. वहाँ पे स्टेट लैंड पे गिरदावरी एंट्रीज एंटर करनी हो, या किसी प्राइवेट लैंड पे अगर एनक्रोच कर ली है तो उसमें इनका नाम एंटर करना हो ताकि कोई लीगल राइट क्रिएट हो जाए. या अगर कोई स्टेट लैंड एनक्रोच होती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, डिमार्केशन जिसे लीगल टर्म्स में कहते हैं, उसमें धांधली करनी हो. सो दीज पटवारीज डू दैट बिकॉज पटवारी is the most important officials
as far as revenue administration is concerned, Department of Revenue is concerned. He is the last man जो ground पे जाके सब कुछ करता है, demarcation से लेके preparation of records. He is the most important person. Class 4 job बेशक है, but he is the most important person, and that post is a district cadre post. So they would transfer patwaris from, maybe say you see Kashmir province or districts of Jammu province, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, और indoctrinated patwaris आपको मिलेंगे, and that is how they do it. नेक्स्ट जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, यानी कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इटसेल्फ ही टूल बन गया डेमोग्राफिक चेंज का, वो है जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड. वक्फ बोर्ड और औकाफ डिपार्टमेंट इन अ टारगेटेड मैनर इज सेंडिंग इलीगल एविक्शन नोटिसेस टू हिंदू फार्मर्स इन जम्मू प्रोविंस. और उन्हें कह रहा है कि द लैंड विच वी हैव बीन कल्टिवेटिंग फ्रॉम द लास्ट मोर देन 70 years is a Muslim land. So वो कहते हैं कि it was a graveyard 70 years back. You have been cultivating it from the last 70 years, but then now, since it was a graveyard 70 years back, so this is Muslim land. The department is the custodian of this land, and you have to be thrown out. So ऐसे कई notices in an organized manner कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर के districts में भेजे गए. In fact, I challenged many of these notices in J&K High Court and got them stayed also. So therefore I have the data, and therefore only on the basis of my experience in the courts against these notices, I can safely conclude that the department, Waqf board or the Awqaf department itself had become a tool of bringing in demographic change. They would falsify records, they would harass individuals. और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में कि ये मुसलमानों की ज़मीन है, ये ग्रेवयार्ड है, इसमें जो क्लेमेंट है वो औकाफ डिपार्टमेंट है, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो भी औकाफ डिपार्टमेंट है. यानी जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है एविक्शन नोटिस भेज के कि आप मेरी ज़मीन पे बैठे हो, उस व्यक्ति को जिसे नोटिस मिला है जवाब औकाफ डिपार्टमेंट को ही देना है, और उसी ऑफिसर को जवाब देना है जिस ऑफिसर ने इन द फर्स्ट इंस्टेंस उसे ये नोटिस भेजा. और फिर इस डिस्प्यूट के ऊपर जो एडजुडिकेशन होनी है, जो निर्णय होना है, वो उसी ऑफिसर ने करना है जिस ऑफिसर ने ये एविक्शन नोटिस भेजा है. तो आउटकम इज क्वाइट नेचुरल. सो देखिए, ये 8-9 कुछ मैंने टूल्स आपके साथ डिस्कस किए ब्रीफली, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का प्रोसेस है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है. कुछ दिन पहले वी केम आउट विद अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ कमीशन अपॉइंटेड बाय अस विच इज़ एकजुट जम्मू. तो उसकी रिपोर्ट को हमने साझा किया था. तो उस रिपोर्ट ने बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके ऐसी नई मुस्लिम कॉलोनीज जो एक अननेचुरल तरीके से डेवलप हुई हैं ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड, उनकी डिटेल्स भी इकट्ठा की थी, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा दैट वी कुड गैदर थ्रू कोर्ट्स या कुछ और रिपोर्ट्स के आधार पे. देन बिल्डिंग ऑफ मॉस्क्स को लेके उन्होंने डेटा इकट्ठा किया था. अंतोगत्वा उस कमीशन का एक ही कंक्लूजन था कि जिस रेट पे जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यानी जिस रेट पे नए मोहल्ले, नई मुस्लिम सेटलमेंट्स, नए मुस्लिम गेटोज आ रहे हैं, उभर रहे हैं, बन रहे हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम ऑन इलीगल लैंड्स एंड ग्रैब्ड लैंड्स एंड स्टेट लैंड्स एंड फॉरेस्ट लैंड्स, एंड दे आर डूइंग विद इट विद इम्प्यूनिटी. तो उन्होंने कहा ये डेमोग्राफिक साइंटिस्ट जो हैं वो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डेमोग्राफी को वेरी अलार्मिंग कैटेगरी में डाल रहे हैं. देखिए, एक नॉर्मल डेमोग्राफिक चेंज इज अ कंटिन्यूअस फिनोमिनन. अगर किसी शहर का या किसी जगह का प्रारूप आज हिंदू है,
तो हो सकता है आने वाले 100 सालों में वो ओवरवेलमिंगली हिंदू और कुछ सेक्शन नॉन हिंदूज की भी उसमें हो जाए, क्योंकि एक डेमोग्राफिक चेंज का प्रोसेस पूरी दुनिया में चलता है। लोग सेटल होते हैं, लोग पलायन करते हैं, देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स दैट हैपन। अब ये जो डेमोग्राफिक चेंज का प्रोसेस ये पूरी दुनिया में चलता है, तो इसे कैटेगराइज किया जाता है कि जिस रेट पे डेमोग्राफी किसी भी एरिया की चेंज हो रही है उसे हम गुड कहेंगे, एवरेज कहेंगे, अलार्मिंग कहेंगे, सीरियस कहेंगे, वेरी वेरी अलार्मिंग कहेंगे। तो टॉप लेवल पे आप इसे देखें, अगर इसकी एक्सट्रीम लेवल पे, तो दिस वेरी अलार्मिंग जो है वो एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि फिर उस शहर का, उस जगह का कुछ समय के अंतराल में पूरा चरित्र ही बदल देना होता है। डेस्टिनी ये होती है कि जो 700-800 साल 900 साल के बाद होगा वो 40-50 सालों में ही हो जाएगा। और धर्म का अनुपात अगर किसी भी जगह का बदल दिया जाए और हिंदू मेजॉरिटी से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया उसे कर दिया जाए तो उस शहर का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। एनी हाउ, मैंने जो टूल्स डिस्कस की उसमें सबसे पहला आपका लेजिस्लेटिव लेवल पे जो स्टेट लेवल पे इंटरवेंशन हुई, लेजिस्लेटिव जिहाद हम जिसे कहते हैं, जो रोशनी एक्ट था। रोशनी एक्ट के ज़रिए सरकारी ज़मीनें जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को दी गई और एक फ़िज़िकल इन्वेजन किया गया जम्मू पे, जहां 20 लाख कनाल से अधिक ज़मीनें एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी गई। अगर जम्मू संभाग में CAG की रिपोर्ट के हिसाब से 20 लाख कनाल ज़मीन एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी गई हो तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये फिजिकल इन्वेजन है ऑन जम्मू। वहाँ पे ये लोग सेटल होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, गेटोइजेशन करेंगे, तो आने वाले कुछ सालों में जम्मू की डेमोग्राफी पे क्या असर पड़ेगा, इट इज़ फॉर एनीबडी टू गेस। एग्जीक्यूटिव जिहाद, एग्जीक्यूटिव लेवल पे 14 फरवरी के ऑर्डर की मैंने बात की, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने ये कहा क्लैंडस्टिनली, सीक्रेटली, एक सीक्रेट ऑर्डर निकाल के जो पब्लिक डोमेन में नहीं था, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने स्वयं पब्लिक डोमेन में लाया। उसमें ये कहा गया था डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में किसी भी तरीके की ज़मीन पे कब्जा करता है तो आप उसे एविक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई कोर्ट ऑर्डर आ जाता है एविक्शन का, तो उस परिस्थिति में SSPs को निर्देश थे उस 4 पन्ने के ऑर्डर में कि आप कोई भी तरीके की पुलिस असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे इन लोगों की एविक्शन करने में। साथ ही साथ मुस्लिम्स को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी काउ स्लॉटर और बोवाइन स्मगलिंग करने के लिए इसी ऑर्डर में। उसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 188 RPC, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिफिकेशन निकालता है, बोवाइन स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाता है, उस सेक्शन 188 RPC का प्रयोग मुसलमानों के खिलाफ जम्मू संभाग में नहीं किया जाएगा अगर वो काउ स्लॉटर या बोवाइन स्मगलिंग कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, उसका प्रयोग जो है वो इनके खिलाफ नहीं किया जाएगा। सो जब स्टेट इंटरवेंशंस कर रही है लेजिस्लेटिव लेवल पे, कानून बना के, विधानसभा को इस्तेमाल करके, डेमोक्रेटिक स्पेसेस को इस्तेमाल करके, जब स्टेट इंटरवेंशंस कर रही है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ये सुनिश्चित कर रही है कि ज़मीनें एक धर्म विशेष के लोग कब्जा करें, जब स्टेट ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पे फंडेड कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस इम्प्यूनिटी के साथ चलता जाए, तो कोई भी व्यक्ति एक ही कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू चल रहा है वो सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोसेस है, जिसके लिए सरकार लेजिस्लेटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंटरवेंशंस कर रही है। सरकार ऑपरेट्स थ्रू लेजिस्लेशंस। तो अगर आपने कानून ही बना दिया जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का, एक धर्म विशेष के लोगों को वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा देने का, उनको मालिकाना हक देने का, तो आई डोंट थिंक कि इस चीज़ को कंक्लूड करने में कोई भी परेशानी किसी भी व्यक्ति को होगी कि ये प्रोसेस स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब क्यों मुसलमानों को यहाँ पे इम्यूनिटी दी जा रही है, उनके लिए कानून बनाए जा रहे हैं? ऑब्वियसली द आंसर इज़ वेरी सिंपल, जो एकजुट जम्मू शुरू से कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर इज़ अ नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। और 370-35 से ख़त्म करने के बाद केवल लीगल स्ट्रक्चर इस इस्लामिक स्टेट का ध्वस्त हुआ है, जो काफ़ी नहीं है। ओनली डी ज्यूरे इस्लामिक स्टेट हैज़ बिन डिसमेंटल्ड। डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और यही कारण है
कि होलसेल capture of forest lands, state lands, river lands in Jammu province by people belonging to one particular religion is going on with impunity. और स्टेट की गवर्नमेंट मशीनरी इज़ नॉट सिंसियर या इफ़ेक्टिव नहीं है इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए. तीसरा जिस पे मैंने ये कहा था कि आई प्रोबेबली ट्राई टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई डिस्कशन पॉइंट डेमोग्राफिक चेंज का, वो ये था. देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का डॉक्ट्रिन ऑफ इकमत अल दीन के तहत ये धैया है कि पूरे विश्व में और जम्मू और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जम्मू में आपको इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करना है. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हेडेड बाय सऊदी अरेबिया, वहाबी स्टेट, a state based on Wahhabi ideology, the most extreme form of ideology, the state Salafists जिसे आप कह सकते हैं, they pump in huge amount of money in Jammu and Kashmir using हवाला चैनल्स. और ये पैसा जब हवाला चैनल्स के ज़रिए जम्मू कश्मीर में आता है, ऑब्वियसली यहाँ की सरकारों के आशीर्वाद से, तो कुछ एनजीओज़ के ज़रिए ये उन मुस्लिम परचेजर्स को पैसा दिया जाता है सब्सिडी के रूप में, जो मुस्लिम जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्र में जाके ज़मीन खरीदता है. क्रेडिबल सोर्सेज के आधार पे और ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस जो हमारे पास है 25 से 30 ट्रांजैक्शंस का, उसमें हमने ये कैलकुलेट किया कि ये सब्सिडी अराउंड 35% के करीब है. मतलब ये कि अगर 1 करोड़ का प्लॉट कोई मुसलमान हिंदू बहुल क्षेत्र में खरीदता है, कठुआ में खरीदता है, सांबा में खरीदता है, जम्मू के सैनिक कॉलोनी में खरीदता है, गांधीनगर में खरीदता है, और अगर वो इस सारी ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट उन एनजीओज़ को जो यहाँ पे अंडर कवर काम कर रहे हैं, मस्जिदों के थ्रू, मदरसों के थ्रू, उन्हें दिखाता है, तो वो 35% पैसा जो उसने जिस दाम में खरीदा वो उसे वापस दे देता है. यही कारण है कि सब्सिडी मिलती है, और इसीलिए जो भी कश्मीर से मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पे आके ज़मीन खरीदता है वो मार्केट प्राइस से 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार रहता है. आप किसी भी व्यक्ति से जम्मू में पूछें कि क्या कश्मीरी बायर मार्केट प्राइस से 1.5 गुना या 2 गुना अधिक प्राइस देने के लिए तैयार है या नहीं, आपको जवाब मिलेगा ये 1.5 गुना क्या 2 गुना तक अधिक प्राइस देने के लिए तैयार रहते हैं. और यही कारण है कि जम्मू में लैंड परचेजेस जो हैं ये धड़ल्ले से करते हैं. पटवारीज का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट होने के बावजूद भी उन्हें आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फर्ज किए जाते हैं. आई थिंक जितने भी ये टूल्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टूल्स इन डिटेल. और आज की डेट में रिजल्ट ये है दैट यू हैव जम्मू सराउंडेड बाय मुस्लिम सेटलमेंट्स बिल्ट अपॉन इलीगली ग्रैब्ड और इलीगली एक्वायर्ड लैंड्स. आज किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए, जम्मू में ज़मीन जिहाद, लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक चेंज का जो प्रोसेस है वो एक विजिबल प्रोसेस हो गया है. आपको यहाँ पे कॉलोनीज दिखेंगी, आप तभी पुल पे खड़े होकर देख लीजिए, आपको भटिंडी दिखेगा, सिदड़ा, नरवाल, बजालता, ये सारे एरियाज़ दिखेंगे जो फॉरेस्ट लैंड्स पे मुस्लिम कॉन्क्रीट घेटोज में तब्दील हो चुके हैं. कुछ समय पहले नेशनल मीडिया पे भी इस मुद्दे को टेकअप किया गया. इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्री वॉज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल चैनल. 1-1.25 घंटे का प्रोग्राम उन्होंने अपने प्राइम टाइम 9 बजे के शो में चलाया, और उसमें ये सारे टूल्स और सारे एविडेंसेस दिखाए जो कोर्ट में आए थे, जो अदरवाइज़ हमारी अपॉइंटेड कमेटी ने कलेक्ट किए थे, और पूरे देश को ये बताया कि जम्मू में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, और इस्लामाइजेशन में जो वो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेमोग्राफी को चेंज करने का कर रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक तरीके से लैंड्स पे कब्जा करने के लिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंटरवेंशंस हो रही हैं. तो अब आज की डेट में किसी को भी ये शक नहीं है, जम्मू में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, कि जम्मू कश्मीर में ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज का प्रोसेस चल रहा है. कारण इस्लामिक स्टेट ऑफ J&K
Islamic State of J&K, the state apparatus, the government apparatus in J&K has been overtaken by Islamists, और जिनका एजेंडा इस्लामाइजेशन ऑफ J&K है, और उस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए वो कानून बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन कर रहे हैं. नाउ this genocidal process could continue with impunity, and I am repeating this thing because it is very important to understand कि ये क्यों चलता रहा. एक तो इम्प्यूनिटी के साथ चलता रहा, जहाँ पे इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स आए, फॉरेन ताकतों के इनिशिएटिव्स आए, और सरकार भी इसे करती गई, बिकॉज द कश्मीर बेस्ड इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट क्लास हैड द एड एंड बैकिंग ऑफ द इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस. उनके पीछे हमेशा भारत की राज्य सत्ता रही, जिसने उन्हें प्रोटेक्ट किया, उनके हाथ में सत्ता सौंपी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जम्मू को सेकंड क्लास होस्टेज स्टेटस दे के रखा. और ऐसा इसलिए किया जस्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट मुस्लिम्स रनिंग J&K, which is a Muslim majority state in a Hindu majority country, through a democratic process symbolizes victory of Indian secularism and democracy. So the policy जो रही जम्मू कश्मीर में, the policy was to hand over J&K to Kashmir, entire J&K to Kashmir, that you go and run it. ये इन्होंने आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके किया, जेरीमेंडरिंग एंड कम्युनल डिलिमिटेशन करके किया, फ्रॉड सेंसस क्रिएट करके किया. ये टूल्स थे which were deployed by the Indian state, the state of India, to ensure that power always remained concentrated in the hands of Kashmiris. Now, in this entire equation, where you have ensured through constitutional and legal means and by committing frauds of census and delimitation that power remains in the hands of Kashmiris, Jammu and Ladakh were held as hostages, mere colonies of Kashmir, and therefore they were given second-class treatment. और फिर इस सारे process में then you had this demographic change का process to continue with impunity because there was nobody whom you can ask questions from. And जम्मू को तो आपने उनके हवाले कर ही दिया था, so they could have done it with impunity. Post 370 abrogation, as I said earlier, only the de jure Muslim state or Muslim state within secular, in fact the Muslim state within secular India was legally dismantled. De facto Muslim state is still in existence, and therefore the process of invading Jammu demographically is still on. अलग अलग तरीकों से ये चल रहा है. So I think I have dealt with all the tools, all the important tools. This is not an exhaustive list. इसके अलावा और सारे processes हैं, समय समय पे फिर जब मुझे मौका मिलेगा तो I'll be discussing it with you. But these were the most important tools which were being used at the level of the state to bring in demographic change in Jammu. और जो effectively इन्होंने demographic change जम्मू में introduce की है, उसके जो तथ्य हैं, उसकी जो चेंज आपको ग्राउंड पे नजर आई है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया. आई थिंक नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड टॉपिक because probably I can also take certain questions when I am done with the second topic also. और जो इसी से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने बात की कि किस तरीके से कम्युनल डिलिमिटेशन करके, फ्रॉड सेंसस करके ये सत्ता कश्मीर को देते थे, जिसके कारण जम्मू सफ़र किया कंटिन्यूसली, कश्मीर में हिंदू सफ़र किए कंटिन्यूसली. वो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस. देखिए 370 वॉज एब्रोगेटेड एंड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया कि 2011 के आधार पे जम्मू कश्मीर में फर्दर डिलिमिटेशन की जाएगी. देखिए मुझे समझ ये नहीं आता है कि जब सत्ता में वो पॉलिटिकल पार्टी है दिल्ली में, जिस पॉलिटिकल पार्टी को कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना है, सत्ता की लड़ाई लड़नी है, वो पॉलिटिकल पार्टी ये निर्णय ले रही है जम्मू कश्मीर में कि हम उस आधार पे डिलिमिटेशन करवाएंगे जिस आधार पे हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट को सत्ता मिलेगी. बीजेपी की ये पोजीशन है आज की डेट में जम्मू कश्मीर में, हमारे विरोध के बावजूद, हमारे विरोध के आंसर में आर्टिकल्स लिख के अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करके कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन हम 2011 के सेंसस के आधार पे ही करवाएंगे. देखिए 2011 के सेंसस के आधार पे अगर आप डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में करवाएंगे तो सत्ता कश्मीर को मिलेगी. 2021 के आधार पे डिलिमिटेशन, 2021 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन अगर आप जम्मू कश्मीर में करवाएंगे तो सत्ता जम्मू को मिलेगी.
उसका कारण ये है कि 2011 का सेंसस जो है वो एक फ्रॉड और फज्ड सेंसस है। उसमें कश्मीर की पॉपुलेशन को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। रिजल्ट ये रहेगा कि कश्मीर प्रोविंस को 90 में से फिर ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी से भी अधिक डिसप्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा। और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में विधानसभा का क्या चरित्र है, विधानसभा में सीटें किस एरिया की ज़्यादा हैं, उसी से तो तय होगा कि किस एरिया से चीफ मिनिस्टर आएगा, कहाँ की सरकार बनेगी। तो 370 खत्म होने के बावजूद भी वो जो करार था दिल्ली और कश्मीरी फासिस्ट, इस्लामिस्ट, फंडामेंटलिस्ट इस्टेब्लिशमेंट का, वो टूटा नहीं। पहले भी सत्ता उन्हें सौंपनी थी, अब भी सत्ता उन्हें सौंपनी। इट इज बैफलिंग टू अंडरस्टैंड कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने ओपोनेंट को पावर मिले ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। जम्मू में बैठ के जब हम इस प्रोसेस को देखते हैं, वी कैन क्लियरली से दैट डिलिमिटेशन ऑन दिस 2011 सेंसस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू। हम तो इसे ये समझते हैं, जम्मू का बच्चा यही आज की डेट में ये समझ रहा है, एंड जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाया उसके बाद, कि इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू। आपने 370 और 35 से एब्रोगेट करके हमें ये समझाने की कोशिश की कि 370 और 35 से के कारण जो वर्स्ट सफरिंग एरिया था जम्मू, अब सत्ता का स्थानांतरण होगा, सत्ता जम्मू को सौंपी जाएगी, जम्मू को एम्पावर किया जाएगा। लेकिन पहला ही कदम जो एक डिसाइसिव कदम है, सत्ता किसे मिले उस दिशा में, आपने कश्मीर के फेवर में लिया। सो वी नॉर्मली कंसीडर इट एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू। अगर ऐसा ही है, देन जम्मू बिकम्स द वॉलंटरी स्लेव टू फंडामेंटलिस्ट कश्मीरी इस्लामिक हेजिमनी। क्योंकि देखिए, फ्रॉड सेंसस हैज ऑलवेज बीन अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट जम्मू। और जो successive governments at the center, they hashed in active connivance with the fundamentalist Kashmiri Islamic power centers. क्यों? In order to ensure that the power in J&K always remains with the Muslims of Kashmir. ये हमेशा किया गया। क्योंकि once you control the census figures, then you ensure that the character of the Jammu and Kashmir's legislative assembly remain Muslim in nature. और यही तो इनकी डिक्लेरेशन थी कि 370 को क्यों खत्म नहीं करना है, क्योंकि 370 ज़रूरी है जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए। तो 370 को इस्तेमाल करके ही सेंसस को भी फज किया जाता था, और उसी फज्ड सेंसस के आधार पे आज भी डिलिमिटेशन अगर करवाई जाएगी तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का मुस्लिम कैरेक्टर, मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। और डेमोक्रेसी की आधारशिला आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब आप इस नए प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आप झूठ पे रखेंगे, उस झूठ पे रखेंगे जो 2011 में किताबों में लिखा गया था, उस झूठ पे रखेंगे जिस झूठ के आधार पे जम्मू को फिर से सेकंड क्लास स्लेव हॉस्टेज कॉलोनी का स्टेटस मिलेगा, उस झूठ के आधार पे रखेंगे जिस झूठ के आधार पे कश्मीर को सत्ता हासिल होगी, कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को सत्ता हासिल होगी। बट दे want to hand over this power to Kashmir because in their understanding, अगर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सक्सेसफुल एक मुसलमान बनाता है तो ये दुनिया को दिखाने के लिए एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल होगी कि जम्मू कश्मीर में इंडिया की सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की देखिए कितनी बड़ी विक्ट्री है कि हिंदुस्तान एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, वहाँ एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने 1947 में टू नेशन थ्योरी के बैकग्राउंड में पाकिस्तान का दामन नहीं थामा, हिंदुस्तान का दामन थामा। वहाँ पे अगर चेहरा डेमोक्रेसी का मुसलमान है, अगर वहाँ की विधानसभा का चरित्र इस्लामिक इन कैरेक्टर है, तो भारत के लिए ये साबित करता है कि भारतीय डेमोक्रेसी और भारतीय सेक्युलरिज्म हाईएस्ट ग्रेड पे जाके सक्सेसफुल हो रही है। ऐसी सबवर्सिव सोच को लेके हर एक पॉलिसी इनिशिएटिव यहाँ पे पोस्ट 370 एब्रोगेशन भी लिया जा रहा है। मैं क्लास 4 रूल्स की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो भी इसी दिशा में लिया हुआ एक कदम है। मैं डोमिसाइल लॉ की बात भी इस फेसबुक लाइव में नहीं कर रहा हूँ, वो भी इसी दिशा में लिया हुआ एक कदम है। देखिए 1941 में जिस समय पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था जम्मू कश्मीर में,
तो कश्मीर की पॉपुलेशन 46.34% थी और जम्मू की 53.66%, यानी कश्मीर की 47% लगा लीजिए तो जम्मू की 53% लगा लीजिए। और एब्सोल्यूट नंबर्स में जम्मू की पॉपुलेशन 20 लाख अधिक थी कश्मीर से। 1951 में कोई सेंसस नहीं हुआ, उसके बाद 1961 में सेंसस हुए। 1961 में ये फ्रॉड इंट्रोड्यूस किया गया जो सेंसस को फज करने का था जम्मू कश्मीर में। सत्ता जो थी वो कश्मीर बेस्ड इस्लामिस्ट्स के हाथ में थी, जिन्हें सेक्युलरिज्म का लबादा चोला भारत सरकार ने पहनाया था कि ये सेक्युलर ताकतें हैं, लेकिन जो अदरवाइज रिलीजियस फासिस्ट मूवमेंट्स से निकले हुए लोग थे, उन्होंने 1961 में ये सेंसस को फज करने का काम शुरू किया। अब 1961 के बाद 1971 में सेंसस नहीं हो पाए क्योंकि यू हैड दिस वॉर विद पाकिस्तान। तो जो फ्रॉड 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक की जगह 10 घर दिखा के, पॉपुलेशन को चेंज करके, टेबल पे सेंसस करके, फिगर्स को चेंज करके, 1981 में उसी मॉडल के आधार पे उसे फर्दर 1981 के सेंसस में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी टोटली कश्मीर के हाथ में थी और इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो बहुत तेज़ी से कश्मीर में चल रहा था और ब्यूरोक्रेसी भी उससे ग्रस्त थी। सो 1961 में ओरिजिनली जो फ्रॉड किया गया वो 1981 में रिफ्लेक्ट हुआ। 1991 में अगेन देयर वाज नो सेंसस इन 1991, और 1991 में जो पॉपुलेशन थी वो केवल प्रोजेक्ट की गई। तो प्रोजेक्शन वाज बेस्ड ऑन 1961 सेंसस विच वाज अ फ्रॉड इन इटसेल्फ। और 1961 के सेंसस को लेके उस समय में बहुत विस्पर्स थे कि इस तरीके से फ्रॉड सेंसस किया गया है, और उस समय के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन लोगों ने इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, जो लोग कि 1961 का सेंसस फ्रॉड है, उनके जो अकाउंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले डायरेक्टर प्लानिंग रहे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने आर्टिकल लिखा था डेली एक्सेल्शियर में, न्यूज़पेपर में, यहाँ पे डिटेल्ड आर्टिकल, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि 1961 में दिस इज़ हाउ वी केम टू द कंक्लूजन कि वो होल सेल फजिंग हुई थी सेंसस की। तो 2001 में भी वही मॉडल फॉलो किया गया, और 2011 में और सिनिस्टर तरीके से उस मॉडल को फॉलो किया गया, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के बाद जब वहाँ से पलायन हुआ तो ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि कश्मीर की पॉपुलेशन तो कम होनी चाहिए, बढ़ती कैसे जा रही है, तो या कश्मीर की सीट्स तो कम होनी चाहिए, बढ़ती कैसे जा रही है। तो उस क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने के लिए इन्होंने और सिनिस्टर तरीके से, और प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से 2001 और 2011 के सेंसस को भी मैनेज किया, फज किया, जिसका कंपैरिजन करके, जिस डेटा का कंपैरिजन करके जब हमने लोगों के सामने रखा तो ये क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ कि शुरू से ही जम्मू कश्मीर में सेंसस को फज किया जाता है ताकि डिलिमिटेशन प्रोसेस हमेशा कश्मीर के फेवर में रहे, जिसके बाद सत्ता जो है वो हमेशा कश्मीर को ही सौंपी जा सके, कश्मीर को ही मिले। अगर 2011 के आधार पे सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होती है, दिस विल डिप्राइव जम्मू ऑफ इट्स शेयर ऑफ हायर सीट एलोकेशन vis-a-vis कश्मीर एज कम्पेयर टू कश्मीर। देखिए 2001 और 2011 के सेंसस का जो डेटा है उसके कंपैरिजन की हमने बात की। इन द बैकलाइट ऑफ सेंसस डेटा कलेक्टेड इन 1961, 81 और फिर जो प्रोजेक्शंस 1991 में हुई थी, तो कुछ कंक्लूजन्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके बाद आई विल नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन ऑन माई ओन, बट ये कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके बाद आई थिंक शुड बी एबल टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स। देखिए 2002 में द नंबर ऑफ वोटर्स इन जम्मू वर मोर देन द नंबर ऑफ वोटर्स इन कश्मीर। 1,41,000 वोटर्स अधिक थे जम्मू संभाग में, लेकिन 2014 में कश्मीर एक्सीड्स जम्मू by 4.21 lakhs. Such a swing. Again, I said I'll not draw any conclusion कि क्या था. You are free
to draw your conclusions. इस तरीके का डेटा देके question is, how did Kashmir's population increase by 14 lakh 11,000 in 10 years from 2001 to 2011? Another thing, according to the, which I call fraud census of 2011, the average population growth of Jammu province, which was 31% between 1971 to 2001, dropped to 21% in 2011. 10% का रेट ऑफ ग्रोथ कम कर दिया गया सेंसस में. अननेचुरल, इरैशनल, जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते. जम्मू हमेशा अपने साइज में स्वेल किया है ड्यू टू सो मेनी माइग्रेशंस. और जो 1971 और 2011 के बीच में जो जम्मू का पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 31% था, वो 2011 के सेंसस के आधार पे उसमें आपने 10% की कमी कर दी. नॉर्मली किसी भी एरिया में इतनी बड़ी कमी अगर सेंसस ऑपरेशंस में रिफ्लेक्ट हुई होती तो फेडरल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट इमीडिएटली एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप करती जो कारण ढूंढती कि किस तरीके से 10% की कमी आई है इस एरिया की रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में. लेकिन ये फ्रॉड था. डिक्रीज ऑफ 10% vis-a-vis जम्मू proves that 2011 census was a fraud and a genocide on paper. देखिए, सेंसस को फर्ज करना इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ जीनोसाइड. ये जीनोसाइडल एक प्रोसेस है, अ जीनोसाइड ऑन पेपर. तीसरा आप तथ्य देखिए, ड्यू टू माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ हिंदू एंड सिख जीनोसाइड इन कश्मीर 89 और 90 की मैं बात कर रहा हूँ, द परसेंटेज ग्रोथ इन कश्मीर पॉपुलेशन शुड हैव बीन लोअर. क्योंकि देखिए, पलायन तो कश्मीर से हुआ ना. कश्मीरी हिंदू समाज हमारा 5 लाख 7 लाख जो वहाँ से जीनोसाइड फेस करके जम्मू में आया या और रियासतों में गया, स्टेट्स में गया, तो वो तो कश्मीर संभाग से गया. लेकिन सेंसस के आधार पे कश्मीर की पॉपुलेशन पोस्ट 1991, एंड प्लीज नोट इट, 26% बढ़ी है. It grew by 26% post 1991 despite lakhs of people migrating out of Kashmir. क्या ये गवर्नमेंट ये तथ्य नहीं जानती? क्या इन तथ्यों के आधार पे आप जम्मू कश्मीर पे डिलिमिटेशन करवाएंगे? इसके आधार पे आप सीट शेयरिंग करेंगे? Another fact that I wanted to point out, the census figures show that the difference between population of Jammu and Kashmir increased by 44% between 2001 and 2011. That is post outbreak of insurgency in 1989, as compared to 16% between 1971 and 1981, establishing again that the 2011 census was a fraud on nation. Between 1981 and 2011, and this conclusion is also again on the basis of this census data. Based upon the data between 1981 and 2011, the population of Muslims as a percentage of total population increased by 4.12%. 81 से 2011 के बीच में जो मुस्लिम पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट ग्रू बाई 4.12%. हिंदूज और सिख्स की इट फेल बाई 4.27%. यानी उनका प्लस पॉजिटिव 4.21% और हिंदू नॉन मुस्लिम्स का माइनस 4.27%. Another thing, delimitation on 2011 census जो है, again I say that this will consolidate Muslim hegemony and perpetuate Jammu and Kashmir as a Muslim domain apart from the rest of India. In fact, it's a betrayal of national interest in J&K, but they have decided to go on with it. Again, I tell you that since the de facto Islamic State
is controlling the state apparatus from within. So conducting delimitation on the basis of fraud census 2011 will defeat the very purpose of neutralization of Article 370, and that is what they want. The fraud of 2011 census was aimed to destroy Hindus, Sikhs politically, socially, culturally, economically, and then create the basic foothold for demographic jihad in Jammu. And it seems that the government has not learnt anything from the past. Top BJP leaders have gone on record in print as well as in electronic media, and also by writing articles in print, that yes, we know that 2011 census is a fraud, 2001 census is a fraud, all census in J&K are a fraud, लेकिन क्या करें, अब 2011 पे ही हम करवाएंगे. So they have taken a position कि हमें पता है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, उसमें कश्मीर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अधिक करके बताई गई है, इसका डायरेक्ट फॉलो आउट होगा कि जम्मू कश्मीर में सत्ता कश्मीर को जाएगी, लेकिन फिर भी दे से दैट 2011 के सेंसस के आधार पे हम करवाएंगे. आई डू नॉट नो व्हाट ग्राउंड दे टेक व्हाइल राइटिंग दीज आर्टिकल्स, या इस तरीके की पोजीशन लेने के लिए. और देखिए, वन मोर कंपैरिजन आई वुड लाइक टू ड्रॉ. द फॉर्मेशन ऑफ J&K अपनी पार्टी, ये जो हुआ है, इसके साथ ही इन्होंने फैसला लिया है कि डीलिमिटेशन भी 2011 के आधार पे करवाएंगे. इट इज़ अगेन, आई वुड से, a subversive act and a part of the same design to enforce Muslim hegemony. अब पुराने सेपरेटिस्ट्स को आपने नया चोला पहनाया. भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खड़ा किया और उसके बाद ये डिक्लेयर किया कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे ताकि इन लोगों को सत्ता सौंपी जा सके. This is an unfortunate situation and a declaration of war on Jammu. I again repeat it, because on the basis of 2011 census, we are damn sure, we are 100% sure कि सत्ता कश्मीर के हाथ में जाएगी. 2021 के सेंसस के आधार पे सत्ता जम्मू के पास आएगी. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द बीजेपी लीडरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव टेकन अ पोजीशन, दे हैव टेकन अ स्टैंड कि हम इसी आधार पे करवाएंगे. और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, डीलिमिटेशन कमीशन का जो 2011 के सेंसस के आधार पर डीलिमिटेशन करवाएगी, उसका गठन हो चुका है. इट इज़ बीइंग हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना देसाई. उसके साथ एसोसिएट मेंबर्स भी हैं. इट्स 3 मेंबर टीम. इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, प्लस एसोसिएट मेंबर्स हैव आल्सो बीन नोटिफाइड. द प्रोसेस इज ऑन और जम्मू को फिर गर्त में धकेला जा रहा है. पॉपुलेशन, एक और भ्रांति जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पॉपुलेशन बेशक हमारे खिलाफ है, लेकिन और जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू को उसका ड्यू शेयर मिले. देखिए, वो एक बहुत प्रोपेगेंडिस्ट इन नेचर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डीलिमिटेशन एक्ट, द सेंट्रल डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के आधार पे जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन होगी. और उसी की सेक्शन 4 सब क्लॉज सब सेक्शन 2 में लिखा है कि डीलिमिटेशन का आधार पॉपुलेशन होगा. और पॉपुलेशन तो आप सेंसस के आधार पे ही देखते हैं. तो जो मूल आधार है डीलिमिटेशन का, अगर वही झूठ है, अगर वही कश्मीर बायस्ड है, कश्मीर के फेवर में है, सो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में क्या हाल होगा ये हम जानते हैं. और ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है. डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू भी यही सुनिश्चित करता है कि सत्ता कश्मीर के हाथ में रहे, और फ्रॉड सेंसस के आधार पे की गई डिलिमिटेशन भी यही सुनिश्चित करता है, यही इंश्योर करता है कि सत्ता कश्मीर के हाथ में रहे. I think we can now take certain questions. If somebody is interested in asking questions or want me to respond to something very specific, they can please post their comments. I can see the comments. There are many comments that I missed because I was addressing all of you. So please, please can you comment once again? Although you might have commented or you might have wanted me to speak on certain issues earlier in your earlier comments, I cannot see much of the comments. I can see at a time only 2 comments. वो ऊपर चलते हैं, they scroll up.
So if somebody can post why Jammu is not separated from Kashmir, absolutely, that's what every Jammuite wants कि जम्मू को सेपरेट किया जाना चाहिए. लेकिन मैंने जैसे बताया कि डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट का स्ट्रक्चर ही ध्वस्त हुआ है. डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे ऑपरेट करती है, जो पॉलिसीज़ और फॉर्मुलेशंस को बनाने के लेवल पे ऑपरेट करती है. केंद्र की राज सत्ता को इसी डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट ने ये समझाया है कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ के ही रखना है, ताकि जम्मू कश्मीर की एक कॉलोनी बनी रहे विद दैट इंटेंट. और फिर रैशनलाइजेशन ये की है कि अगर जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाएगा तो कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ चला ही गया. आई थिंक दिस इज़ बेसलेस. इसका कोई आधार नहीं है, ये आधारहीन बात है. इनफैक्ट अगर कश्मीर को डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी बना के डायरेक्टली केंद्र सरकार के कंट्रोल में रखा जाए और वहाँ पे कोई विधानसभा ना बनाई जाए तो कश्मीर टोटल तरीके से कंट्रोल में आएगा. और जम्मू तो देश के लिए है ही. जम्मू को सेपरेट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जम्मू में जम्मू के लोग चलाएं, ऐसा मार्ग प्रशस्त होना चाहिए. फाइनल सोल्यूशन वही होगा. और इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि देखिए इस्लामिक टोटलिटेरियन मूवमेंट्स का, खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड, जिन्होंने इस तरीके को मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया इस मॉडस ऑपरेंडाई को, कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक स्पेसेस कैप्चर कीजिए, उसके ज़रिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंदर से सबवर्ट करिए, कानून बनाइए और जिहाद चलाइए. मुझे लगता है कि अगर इस टोटलिटेरियन प्रोसेस के मॉडस ऑपरेंडाई को आपने रिवर्स करना है, कंटेन करना है, अरेस्ट करना है, ध्वस्त करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को यूटी बना के डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए और कोई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्म में वहाँ पे ना दिया जाए. इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो हैं वो हो सकते हैं. ऑफ कोर्स एवरी जम्मुआइट इज़ क्लियर कि ये डुग्गर लैंड है विच नाउ स्टैंड्स ऑक्यूपाइड बाई कश्मीरीज. हमें चाहे कश्मीरी हिंदू हों, जम्मू के हिंदू हों, पंजाब के हिंदू हों, महाराष्ट्र के हिंदू हों, अब सबको मिल के इस प्रोसेस के अगेंस्ट लड़ना है. केंद्र सरकार को मजबूर करना है कि अपना जो एक स्ट्रेटेजिक पैराडाइम, जो एक स्ट्रेटजी के तौर पे जम्मू कश्मीर में वो अपनी पोजीशनिंग करती है स्ट्रेटजी के आधार पे. देखिए वो जम्मू विरोधी है, हिंदू विरोधी है और देश विरोधी है. इसीलिए द इंडियन गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट इट शुड रिवर्स इट्स पॉलिसी ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के ज़रिए ही चलाना है. I think then so many solutions can come. Mass awareness definitely is the need of the hour. I'm reading from the comments and responding. And we are creating mass awareness. एकजुट जम्मू 370 और 35 पे मास अवेयरनेस के प्रोग्राम से लेके डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू पे मास अवेयरनेस के प्रोग्राम से लेके इलीगल सेटलमेंट ऑफ रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के मामले में मास अवेयरनेस से लेके तकरीबन उस हर विषय पे अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इन ताकतों से, जीनोसाइडल प्रोसेसेस से हमें लड़ा जाए. अंततः मैं लास्ट में अपनी बात यही कहूँगा कि कश्मीरी हिंदू समाज को, जम्मू के हिंदू समाज को, जम्मू के सिख समाज को मिल के जम्मू में जो हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हुआ है कश्मीर में 89-90s में, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में 90s में और कंटिन्यूसली आज तक जो हो रहा है, मुझे लगता है केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए कि इसे ऑफिशियली जेनोसाइड रिकग्नाइज़ करे. क्योंकि ऑफिशियली जेनोसाइड रिकग्नाइज करने के बाद ही भारत सरकार, जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड की सिग्नेटरी है, मजबूर होगी कि वो परपेट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सके, एक्शन ले सके. कश्मीरी हिंदू तब तक वापस नहीं जा सकते, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड
तब तक रिवर्स नहीं हो सकता जब तक ऑफिशियली भारत सरकार जीनोसाइड रिकग्नाइज करके करेक्टिव एक्शन, कोअर्सिव एक्शन परपेट्रेटर्स के खिलाफ ना ले। आज वो लोग जो परपेट्रेटर्स थे वो सत्ताधीश बन के जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, उनकी जगह जेल में है। तो मैं ये भारत सरकार के ऊपर, इनफैक्ट मैं ये पूरे हिंदू समाज से, पूरे देश के हिंदू समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जो मैसेकर्स, रेप, लूट, प्लंडर, जो एग्जॉडस हुआ है वो जेनोसाइड है। भारत सरकार इसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे नोटिफिकेशन निकाल के जेनोसाइड रिकग्नाइज करे और जेनोसाइड करने में जो ताकतें शामिल थी उन्हें फांसी के तख्ते पे लटकाने का काम करे। उसके बाद ही ऐसी कंडीशन जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हो सकती है जिस कंडीशन में कश्मीरी हिंदू समाज सोच सकता है कि वापस जाके अपनी टेरिटरी वहाँ पे कार्व आउट करके पुनः अपने आप को स्थापित करेगा। ये भारत सरकार की अवधारणा है, मिसकॉन्सेप्शन है और कश्मीरी हिंदू समाज और हिंदू समाज के प्रति एफरंट है, इंसल्ट है कि वो ये कहते हैं कि आप जाइए और वहाँ पे घर बनाइए और अलगाववादियों से मिलके उनसे रिश्ते सुधार के अपने घर बनाइए, आप आसानी से रह पाएंगे, आपके लिए मार्ग प्रशस्त है। ये हमारा क्लियर कहना है कि कश्मीरी हिंदू समाज और भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ का वो हिंदू समाज जिसने जेनोसाइड फेस किया है वो जीनोसाइड का विक्टिम है, वो अर्थक्वेक का विक्टिम नहीं है, वो किसी नेचुरल कैलामिटी का विक्टिम नहीं है। जब तक आप वो परिस्थितियां ठीक नहीं करते, जिन परिस्थितियों के कारण उनको वहां से जाना पड़ा, जिन लोगों ने वो परिस्थितियां उत्पन्न की, जब तक आप उन्हें फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाते, जब तक आप उनको कानून के तहत पनिश नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी हिंदू समाज का व्यक्ति या हिंदू समाज का व्यक्ति वहां पे जाके सुरक्षित होगा। ये तो सौंपने वाली बात होगी कि परपेट्रेटर जो रेपिस्ट है, जो मर्डरिस्ट है, वो खुलेआम घूम रहा है, वो सत्ताधीश बन के बैठा है, वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ जाइए और उनके साथ रहना शुरू करिए। क्या भारत सरकार की ये जो अवधारणा है, मेरा ये मानना है कि वो बदलनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। इसके लिए पूरा हिंदू समाज खड़ा होना चाहिए। एंड विद दिस आई थिंक आई विल एंड दिस फेसबुक लाइव शो। आई अगेन थैंक विस्थापित कब तक की मैनेजमेंट टीम for giving me this opportunity to address the audience और इन दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो एग्जिस्टेंशियल और सर्वाइवल इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स के लिए, उस पर बात करने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि फिर भी आप सब लोगों से बात करने का मौका मुझे मिलेगा और विस्तार से चर्चा इसमें कर पाएंगे। आपके लिए मैं ये आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं जाते जाते कि देखिए, जिन चीज़ों से हम लड़ रहे हैं, चाहे डेमोग्राफिक इन्वेजन हो या डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो या जम्मू की डिसएम्पावरमेंट को लेके लार्जली एक लड़ाई हो या जम्मू को पावर सेंटर करने की लड़ाई हो, उस लड़ाई में हम आपके सहयोग की मदद से, आपके सहयोग से यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू राष्ट्रवादी समाज की मदद से उस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे जो एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है एक संगठन का शेप ले रहा है। एकजुट जम्मू 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स बना चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स आने वाले 6 से 7 महीने में ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे टीम्स बना देंगी। उसके 1 महीने के अंदर अंदर बूथ लेवल पे टीम्स बनेंगी और मुझे लगता है जो हमारी लड़ाई है हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की, उसे हम एक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़ पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बिना लड़ाई लड़ना मुश्किल होता है। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप नंबर्स डू मैटर और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से, एक संगठन बना के, एक संगठनात्मक तरीके से लड़ाई लड़ना सक्सेसफुल होता है। सो वी आर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ आवर बैटल्स एंड ऑल आउट वॉर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा संगठन ग्रास रूट लेवल तक बहुत तेज़ी से पहुंच रहा है। वी नीड योर विशेस एंड वी नीड योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो, द एल्डर्स, आपका प्यार, कि हम इस जीनोसाइडल प्रोसेस, इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को लड़ने के लिए जिस संगठन का निर्माण कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में खड़ा होकर मजबूती से इस प्रोसेस के खिलाफ लड़े और जितना ध्वस्त इनके सिस्टम को हमने अभी किया है, बाकी रिमेनिंग सिस्टम को संगठनात्मक तरीके से मिट्टी में मिला दे और यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को रिस्टोर करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।